Assalamu alaikum. So in this video, I will discuss some high-yield MCQs from these topics which are written in front of you. So these are high-yield MCQs which we have compiled from proff USMLE point of view and high-yield MCQs. So this is the third video of our MCQ series from pharmacology. So do subscribe our channel अगर आप चाहते हैं कि आप लोग को updates मिलती जाएं क्योंकि we are uploading videos regarding MCQs. So do subscribe our channel ताकि आप लोग updated रहें. So the first MCQ, a 27-year-old African American woman is seen in the emergency room with the complaint of urinary frequency, urgency and dysuria. अब उसमें कुछ चीजें आपको पता लगी कि उसे dysuria यानी something is wrong with the kidney side. A urinary analysis demonstrate bacteria and white blood cells, and she is given trimethoprim and sulfonamide. So for UTIs, chronic UTIs, we prefer sulfonamide along with the trimethoprim, which is called trimethoprim. तो हम ये combination UTIs में prefer कर रहे होते हैं. She now returns with the sores and blisters around her mouth. तो अब ये इसका कोई टॉक्सिक रिएक्शन हुआ है तो अब वो अब देखते हैं कौन सा होता है. What should you include in the differential of her current complaint? So अगर हम इसके डिफरेंशियल में लाएं तो जब सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम देते हैं तो इसका डिफरेंशियल होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. These are the like you can see blisters in the mucous membrane माउथ के, और यहाँ पे आप ब्लिस्टर्स देख सकते हैं. समटाइम्स बहुत स्वेयर होते हैं, समटाइम्स माइल्ड होते हैं. सो दिस इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. और यूटीआईज में सबसे पहले हम देख रहे होते हैं ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल को. सो दिस इज द राइट आंसर. सो रेडमैन सिंड्रोम आप लोगों को पता है कि किस में होता है, विंकोमाइसिन, डिसेमिनेटेड, ये बाकी डिफरेंट में आप लोग पढ़ेंगे, काफी जगह पे होते हैं. So the next MCQ, the 43-year-old woman, HIV के जब पेशेंट होता है उसमें दो चीजें आप बहुत कॉमनली देखेंगे. एक उनमें नमूनिया बाय न्यूमोसाइटस जिरोवेसी और एक उनमें देखेंगे माइकोबैक्टीरियम एवियम की इन्फेक्शन. तो ये याद रखना है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली ड्यू टू द इम्यूनोडेफिशिएंसी वो काम करने आ गए. 43-year CD41 count is 150, present with a shortness of breath and arterial blood gas determine indicative of hypoxia. अब उसको किससे है, न्यूमोसाइटस जिरोविसी. तो हमारे पास क्या बेस्ट मेडिसिन होगी, तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि अगर तो हो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो कि जनरल केसेस में होता है, जो आम पॉपुलेशन में होता है, in that case मैक्रोलाइड इज अ गुड ऑप्शन. बट अगर वो न्यूमोसाइटस जिरोविसी की वजह से हो, so this is an opportunistic infection and it is treated by trimethoprim and sulfamethoxazole. So this is one of the most important MCQs which are repeatedly asked, and it is an opportunistic infection. You have to remember it. So the right answer is option E. Second, first treatment उसकी थी ये कर सकते थे. Second line agent में pentamide and dapsone. Dapsone का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेप्रोसी में यूज होती है, often in combination with pyrimethamine और atovaquone. तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है जो कि यूज हो सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट चॉइस इज TMP SMX. So the next MCQ, a 33-year-old basketball player with a severe pain in right ankle. He tells he was running basketball, he turns, jump and shoot the ball. He felt as though some struck back of the ankle. अब ये कुछ चीजें आप लोग देख सकते हैं सिम्टम्स. ये एक बड़ी कॉमन मेडिसिन के ये सिम्टम है. फिर आपने पूछा you ask the patient to kneel on a chair and you squeeze the right gastrocnemius muscle belly and notice there is no resulting plantar flexion. अब वो जब खुद plantar flexion कर रहा है तब हो रही है, बट आपने जब gastrocnemius से करने की कोशिश की नहीं हुई. इट मीन्स जो plantar flexion करवा रहा था वो मसल gastrocnemius किसके थ्रू अटैच होता है, थ्रू द Achilles tendon. इट मीन्स Achilles tendon is ruptured in this case, so plantar flexion is absent. So the most likely medicine, इसमें अगर आप ऑप्शंस देखें तो इसमें से आपको याद होना चाहिए कि फ्लोरोक्विनोलोन्स इज द मोस्ट लाइकली मेडिसिन जो कि हमारे पास ये वाला काम करवाएगी. फ्लोरोक्विनोलोन्स की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये वाली है कि वो हमारे पास टेंडन रप्चर करवा देती है, और एक्यूलिस टेंडन बहुत कॉमन रप्चर है. और इसके अलावा ये हम प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये हमारा कॉन्ड्रोजेनेसिस कार्टिलेज की डेवलपमेंट को रोकती है. तो फ्लोरोक्विनोलोन यूज की वजह से हुआ. So the test the doctor perform is the Thompson test. जो गैस्ट्रोगेनेमियस को स्क्वीज किया था वो थॉम्पसन टेस्ट था और वो पॉजिटिव आया था इस केस में.
क्योंकि उसमें प्लांटर फ्लेक्शन होती तो वो सही होता, बट इसमें नहीं हुई तो वो पॉजिटिव था। एक और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फिर हमारे पास क्या थी, न्यूमोसाइटस जिरोविसी। फिर इसमें हमारे पास क्या चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होगी, मैंने बताया था कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फोनामाइड अलोंग विद ट्राइमेथोप्रिम which is called trimethoxazole. So the Charlie option is the right option in this case. The next option is a 26-year-old when present with the symptom of gonorrhea. Because this condition often, अब मैंने पहले भी MCQ सीरीज के MCQs में बताया था कि जब गोनोरिया होता है तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैलामीडिया साथ आ जाए। गोनोरिया के साथ कैलामीडिया के इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हो जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्विनोलोन इज द बेस्ट चॉइस इन दिस केस। सो अगर क्विनोलोन में देखा जाए तो इसकी आप लोग कुछ जगह पे पढ़ोगे तो द बेस्ट चॉइस हियर इज लेवोफ्लॉक्सासिन which is the third generation of the fluoroquinolones. The next MCQ, a 57-year-old chronic alcoholic developed hepatic encephalopathy. In attempt to decrease the ammonia level, you decide to sterilize his intestine, knowing that gastrointestinal flora is responsible for the ammonia that his liver can no longer detoxify. Which antibiotic? अब आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक देनी है जो कि उसके गट से अब्जॉर्ब ना हो रही हो, आपने इंटेस्टाइनल फ्लोरा को करना है, यू डिसाइड टू लाइज इंटेस्टाइन, तो कौन सी मेडिसिन देंगे जो इसकी अब्जॉर्प्शन ना हो। इसमें से जो मोस्ट कॉमन यूज होती है आपको पता है, वेंकोमाइसिन आईवी देते हैं, और वेंकोमाइसिन इवन हमारे पास जो होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल उसके लिए भी यूज हो सकती है, ये याद रखिएगा। फिर हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये कोई भी नहीं। इसमें द राइट आंसर इज नियोमाइसिन। नियोमाइसिन इज एन अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि हम इवन जो सर्जरी का ऑपरेशन होता है उससे पहले दी जाती है प्रोफाइलेक्सिस के। उसकी रीजन होती है ताकि उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, जब कोलोरेक्टल सर्जरी होनी होती है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को खत्म किया जा सके, बिकॉज मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं जब कोलोरेक्टल सर्जरी हो तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ब्लड में एंटर हो जाए, तो हमने इसको रोकना होता है। सो नियोमाइसिन इज द राइट आंसर। Which adverse effect is most likely to occur with the sulfonamide? तो सल्फोनामाइड्स में ये ऑप्शन है। अब सल्फोनामाइड में से मोस्ट लाइकली अगर आप लोगों से डिफेक्ट पूछा जाए तो आप लोग देखें, इसमें से बाकी डिफेक्ट्स भी होते हैं, बट लाइकली जो होता है वो हमारे पास होता है स्किन रिएक्शंस। स्किन रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है। निक्टरस इन न्यूबॉर्न्स में हो सकता है, बट अब ये न्यूबॉर्न्स में देख के दी जाती है क्योंकि अब इसकी अवेयरनेस है कि निक्टरस करवा देगी, तो ये दी ही नहीं जाएगी। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन और हेमाचोरिया और ये वाली चीजें हो सकती है, बट नॉट द मोस्ट लाइकली वन। स्किन रिएक्शन, hypersensitivity, the most likely side effect of the sulfonamides. So last MCQ, which statement about once daily dosing of aminoglycoside is not accurate? So aminoglycosides are given on the principle of once daily dosing, क्योंकि ये हमारे पास concentration dependent killing करता है। तो concentration dependent killing है, इस वजह से हम जो aminoglycoside होते हैं उसकी एक ही बारी हाई डोज दे देते हैं तो वो ब्लड में मेंटेन रहेगी और अच्छी तरह ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन गलत है? कन्वीनियंट फॉर आउट पेशेंट थेरेपी, दिस इज ट्रू, ये सही ऑप्शन है क्योंकि ये कन्वीनियंट होगी, हमें एक बार ही देनी पड़ेगी। डोजेज एडजस्टमेंट इज लेस इंपॉर्टेंट इन रीनल इनसफिशिएंसी, रॉन्ग, बिकॉज इसने हमारे पास कहाँ से एलिमिनेट होना है, रीनल से, तो इसकी रीनल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दिस इज द राइट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। तो दिस इज बीटा। बाकी ऑप्शन भी आप लोग करें तो ये हमारे पास सही आंसर्स नहीं है। So this is all about some MCQs from sulfonamide, fluoroquinolones, aminoglycoside and pectinomycin, which are high yield one, जो repeatedly पूछे जाते हैं, इन scenarios में ये पूछे जाते हैं। So I hope it will help you in this regard. Thank you very much and do subscribe our channel.